Hello everyone. Hello, sir. Okay. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's continue with the discussion of assignments. Okay. So let's do assignment. We were discussing assignment 9.2. Okay. Which is central force. Okay. So I have selected a list of questions that we are going to do today, and remaining, whatever it is, we are going to do tomorrow. So first, let us discuss question number 4. Question number 4 says that the path of a particle of mass m moving under the influence of a central force in plane polar coordinate is given by r is equal to r naught e to the power k theta. Okay, where r naught and k are positive constants. The angular momentum of the particle is L and its total energy is 0. Find the potential energy in terms of m, L, and k. Okay. So r is equal to r naught e to the power k into theta. Okay. So what is the differential equation of orbit? d2u by d theta square plus u is equal to minus mf by L square u square. Okay. So now इस इक्वेशन में जो u होता था वो क्या होता था? 1 upon r. So u will be equal to 1 by r naught e to the power k theta, so e to the power minus k theta. Okay. So here we require d2u by d theta square. So first you have to do du by d theta.
So du by d theta will be equal to, it will be 1 upon r naught will be same, e to the power minus k theta, okay, and multiplied by minus k. Okay. So from here, what will be d2u by d theta square? This will be nothing but minus k will be k square, okay, and remaining part is e to the power minus k theta divided by r naught. Okay, so this will be k square, and this is nothing but u itself, so k square u. Okay, so now just put all these in this equation. So d2u by d theta square, so k square u plus u is equal to minus mf by L square u square. So from here we'll get, so it will be u into 1 plus k square, and 1 u square will come from here, the u cube is equal to minus mf divided by L square. Okay, so from here u, just put u is equal to 1 by r, so you'll be getting f is equal to minus L square into k square plus 1 divided by m r cube. So this is the force law. Okay. Now from the force law, how do you find the potential? V is equals to minus F dA. Okay. So V is equal to minus F dr means it will be equal to L square k square plus 1 by m, it will be same, and minus ftr, so it will be minus plus, and 1 minus will be minus 3 by r to the power 4, minus 3 by r to the power 4. Okay, so this will be your potential. Okay. And remaining questions 1 2 3 हमने क्लास में किए थे कुछ क्वेश्चंस इसमें से? इनका ए पार्ट किया था. अच्छा, ए पार्ट किया था. So B part, I'll tell you the answer after the class, and then you can check, okay? And if you are not able to do, then we'll discuss, okay? Yes, sir. लिख लिया सबने? सर Yes. सेकंड का सर बी पार्ट भी. हाँ, this 1 2 3 I'll first tell you the answer. या तो मैं PDF अपलोड कर दूंगा कुछ, और उसके बाद में समझ में नहीं आएगा तो आपको डिस्कस कर लें, ठीक है? ओके. लिख लिया सबने? Yes, sir. Question number. Let us discuss question number 9. Question number 9 says the two planets A and B move around the sun in elliptical orbits with time period TA and TB. Okay. Time period is TA and TB.
respectively, or eccentricity is E, the distance of closest approach is R. Okay. Two planets are there are two planets A and B. Okay, and here it is given that eccentricity is E is R max minus R min divided by R max plus R min. Okay, बट जो हमने एनालिसिस किया था उसमें हमने R max को क्या लिया था? R2. R max को हमने R2 लिया था ना. Okay, so let's just R2 and R min is R1. Okay, ये आपको रिप्लेस कर देना है. ठीक है. Okay, so now for A it is given that time period is TA. For B time period is TB. Okay, distance of closest approach to sun is R for B. इसका मतलब है कि R1 B जो है वो दिया हुआ है R. Okay, so now पूछा है कि what is the maximum possible distance between the planets. ठीक है, तो देखिए दोनों के दोनों ऑर्बिट्स सन के अबाउट है. ठीक है, दिस इज सन. ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कब होगा? जब दोनों एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे मैक्सिमम पे. मतलब ऑर्बिट कुछ इस तरीके से होगा. ये एक का एक closest ये है और एक एक ये का है. है ना? समझ गए बात? मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा? जब यहां से सन से लेकर ये सपोज आपका बी का है और ये ए का है, तो ये जितना है वो कितना है? R2B है and this is R1B. ठीक है, तो जो R max पूछा है हमसे, R max possible, वो क्या होगा? This will be nothing but R1B plus R2B. Okay, not R1B. Sorry, R2B. R2A. This will be equal to R2A. This is R2A. ठीक है. ओके, तो हमें जानकारी दी हुई है R1B के बारे में. ओके, तो फ्रॉम हियर एक्सेंट्रिसिटी जो हमारा है E is equal to R2B यहां से इस यहां से R2B माइनस R1B डिवाइडेड बाय R2B प्लस R1B. तो यहां से आपका आ जाएगा it will be equal to E into R2B plus E into R1B is equal to R2B minus R1B. Okay, so यहाँ से आपका R2B जो आ जाएगा वो आ जाएगा here it is 1, here it is E. तो 1 minus sorry, here it is 1. 1 plus E divided by 1 minus E into R1B. Okay, E into R2B plus E into R1B is equal to R2B minus R1B. So R2B, yes, okay. So R2B इतना आ जाएगा और R1B जो है R दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका R2B is equal to 1 plus E divided by 1 minus E into R. ठीक है, एक टर्म तो आपको आ गया हमारे पास, R2B की वैल्यू तो आ गई, ये 1 plus E divided by 1 minus E into R. ओके,
अब हमें एक और क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वो है R2A, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक और जानकारी दी है, क्या, TA और TB के बारे में, ठीक है। तो बताइए व्हाट इज TA और TB? टाइम पीरियड क्या होता है? TA बाय TB इज इक्वल टू क्या था? थ्री बाई आर रिकॉर्ड थ्री बाई A by AB to the power 3/2, यस right? So from here we will get AA by AB is equal to TA by TB to the power 2/3. Okay. So from here we'll get what is A in terms of R2A? R1 plus R2 by 2. A is equal to R1. R2A plus R1A by 2. नहीं, A को हम लिख सकते हैं R2A divided by 1 R2B divided by 1 plus E, ये लिख सकते हैं ना। क्योंकि देखिए R2 क्या होता था? R2 होता था 1 plus E into A, Yes sir. right? So it will be sorry, यहाँ पर जो है A होगा सर. फिर से लिख देता हूँ मैं। तो आपका A हो जाएगा R2A divided by 1 plus E, और R2B हो जाएगा R2B divided by 1 plus E. Okay. This is equal to TA by TB to the power 2/3. Okay. So from here R2A will be equal to TA by TB to the power 2/3 into R2B. Okay, so it will be equal to TA by TB to the power 2/3 into R2B is this 1 plus E divided by 1 minus E into R. तो फाइनली जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी R तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 plus E divided by 1 minus E, और R कॉमन आ जाएगा, ये दोनों कॉमन आ जाएगा, और बचेगा 1 plus TA by TB to the power 2/3. This will be your answer, B. अच्छा, एक और बात है पर जो इस क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है ना उसने, वेयर वी हैव टू अज्यूम दैट बोथ हैव सेम एक्सेंट्रिसिटी। समझ गए बात? जो इसमें आंसर दे रखा है वो जब ही आएगा जब आपको देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये होगा ना और यहाँ पर ई भी होगा ना। Yes, sir. दोनों का इंटेंसिटी सेम रहेगा सर। हाँ, दोनों का एक्सेंट्रिसिटी सेम लेना पड़ेगा, इस तभी आएगा, यस नहीं है ना? ठीक है Sir, ये दो orbits, how will you understand, like, why did we take it like this? These two बिकॉज orbits? मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पूछा है, तो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस ए की सन से कितनी होती है? R2 होती है, और बी की सन से R2 भी होती है। तो हम इस तरीके से ऑर्बिट्स को देखेंगे ताकि मैक्सिमम हो, तो डायमेट्रिकली अपोजिट हो जाएंगे। डायमेट्रिकली इन द सेंस कि दिस मैक्सिमम से मैक्सिमम तक मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पूछा उसने। सही, और एक जैसा मतलब सेम साइज का क्यों ले रहा है सर ऑर्बिट? क्या सेम साइज का? सेम साइज का नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, तो मैंने ग्राफ बनाया इस तरह का। R2 है वो, तो R2 भी कुछ भी हो सकता है। और सर एसेंट्रिसिटी सर वो ये ईबी के साथ सेम लिया। एक्सेंट्रिसिटी सेम होगा, बट एक्सेंट्रिसिटी सेम होगा तो उसका मतलब ये थोड़ी कि R2 या R2 भी बराबर सेम होंगे।
सॉरी सर, इलिप्स यानी कि दोनों का इलिप्स है, बस ये बता रहा है। हाँ, ओके सर लास्ट वाला स्टेप कैसे किया सर, राइट साइड वाला? ये वाला सर इस साइड वाला, राइट साइड वाला, यस सर। R2B की वैल्यू रख दी सिर्फ मैंने। सर इस इसेंट्रिसिटी सर डिफरेंट हो जाता तो हाँ, एक्सेंट्रिसिटी डिफरेंट होगा तो यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाएगा, ये वाला 1 प्लस ई वाला और 1 प्लस ईबी वाला। तो सेम रहेगा तब होगा। हाँ, सेम रहेगा तो फिर कैंसिल हो जाएगा ये, जो तो इसीलिए TFR वाले में, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कभी कभी क्वेश्चन एम्बिग्यूअस हो जाते हैं, तो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसमें एक्सेंट्रिसिटी जो है सेम लेंगे। लिख लिया सबने ये? यस सर यस। सर वहां पे जो हमने ए सफिक्स ए जो लिया है वो तो सेमी मेजर एक्सेशन है, तो R2A by R2B को कैसे फिर हम लोग उससे इक्वेट कर रहे हैं? R2A बाय R2B को कैसे इक्वेट कर रहे हैं मतलब सर TA upon TB to the power 2/3 कैसे लिख? हाँ हाँ, ये कैसे आया? नहीं सर उसके बाद वाला स्टेप सर समझ क्या में वाला नहीं आया। स्टेप? सर मतलब लास्ट वाला स्टेप जो आपने R2A इक्वल टू जो वो लिखा ना, वो कैसे किया? ये यस सर। हाँ, तो मैंने ये बोला कि यहाँ पे एक्सेंट्रिसिटी सेम लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर R2B की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ से। हाँ सर बोल। Okay, so let us discuss question number 10. Question number 10 says that a particle moves under the influence of a central potential in the orbit. R is equal to K theta to the power 4. Okay, where K is a constant and R is the distance from the origin. It follows that the angle theta varies with time as. Okay, so बताइए central potential है, okay, central potential, that means L will be conserved. Okay, and what is L? बताइए क्या होता है R और थीटा के टर्म्स में? M R स्क्वायर थीटा डॉट, राइट? सो L इज इक्वल टू M, R को लग देंगे यहां से, तो R स्क्वायर विल बी K स्क्वायर थीटा टू द पावर 8 इंटू थीटा डॉट। ठीक है, तो यहां से आपका इक्वेशन आ जाएगा L बाय एम के स्क्वायर और थीटा डॉट को डी थीटा बाय डी टी रख देंगे इंटू डी टी इज इक्वल टू थीटा टू द पावर 8 इंटू डी थीटा। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हियर इट विल बी L बाय एम के स्क्वायर इंटू टी, दिस विल बी इक्वल टू थीटा टू द पावर 9 बाय 9। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 1 बाय 9। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 1 बाय 9। Okay. Now let us discuss question number 11. Question number 11 says, imagine that a narrow tunnel is excavated through the earth as shown in the diagram on the left, and that the mass excavated is extremely small, t. A person falls into tunnel at one end at time t is equal to 0. Assuming that the tunnel is frictionless, the person will. Okay. तो इस तरीके से एक टनल है,
देयर इज अ टनल, ओके, यहां से ओके, ठीक है। तो जब पर्सन फॉल करेगा तो क्या होगा, ठीक है, और आपको ये डिस्टेंस जो है डी दी हुई है, ये वाला डिस्टेंस। तो सपोज किसी एक पर्टिकुलर आर पे आ जाता है पार्टिकल, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आर पे आता है, सपोज यहां पर आ जाता है पार्टिकल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और सपोज ये एंगल जो है वो है थीटा। तो जब पार्टिकल यहां पर आता है तो उसके ऊपर फोर्स क्या रहेगा बताइए मुझे, और ये डिस्टेंस उसको बोल देता हूं मैं एक्स, जो ये वाली डिस्टेंस। तो बताइए फोर्स क्या रहेगा पार्टिकल के ऊपर जब यहां पर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट इनसाइड है, यस सर, तो एफ जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा बताइए, माइनस जी एम एम बाय क्या होता है बताइए, आर क्यूब, आर स्क्वायर होता है। आर क्यूब इंटू आर, आर कैप। अच्छा, इनसाइड में ये होता है ना, यस सर, ठीक है, इनसाइड में ये होता है, आउटसाइड में नीचे आर स्क्वायर होता है ना। तो अब इसका अगर मैं इधर कंपोनेंट लूंगा फोर्स का, तो ये वाला फोर्स तो इधर होगा इनवर्ट तरफ। अब मैं इसका कंपोनेंट सपोज इधर लेता हूं, मैं इधर, तो इधर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, एफ cos थीटा। थीटा ये है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यस, तो एफ एक्स हो जाएगा आपका माइनस जी एम एम बाय आर क्यूब इंटू आर साइन थीटा, ठीक है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट इस फोर्स का इधर आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाय आर क्यूब इंटू, और आर साइन थीटा क्या है, एक्स है, Yes. आर थीटा, तो आर साइन थीटा इज एक्स। तो इक्वेशन आपको दिख रही है ये कुछ, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस जी एम बाय आर क्यूब इंटू एक्स। तो इक्वेशन आपको दिख रही है, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया आपका, राइट। तो एक्स इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये इक्वेशन किसकी होती है, SHM. और ओमेगा आपका है अंडर रूट ऑफ जी एम बाय आर क्यूब। टाइम पीरियड पूछा है आपसे, यस टाइम पीरियड पूछा है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, so it will be equal to 2 pi by under root gm by r cube, ये आंसर हो जाएगा। SHM करेगा और इस टाइम पीरियड के साथ। सर जो फोर्स का कंपोनेंट लिए हैं सर वो सेंटर से होगा ना। हाँ, फोर्स इधर लग रहा है सेंटर की तरफ, उसका इधर कंपोनेंट लिया मैंने, इधर टनल की तरफ। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड कर दिए थोड़ा सा। ओके सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तो हमने क्लास में कर रखा है ना। सर आंसर मैच नहीं कर रहा सर। आंसर क्या दिया हुआ है, सर मैंने सॉल्व किया था तो सर मैच नहीं कर रहा था। आंसर अरे मैंने एग्जैक्टली लिखा है यार, आपको एंगुलर मोमेंटम क्या होगा,
क्लास में मैंने एग्जैक्टली कराया है। वो जब हम कर रहे थे आरमेक्स और आर्बिन की प्रॉब्लम, तो उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, ये सब चीजें कराई थी मैंने। हाँ सर, वहां से भी नहीं आ रहा था। अरे वहां से आ क्या रहा था, वहां पे एग्जैक्टली आंसर लिखा था मैंने, तो जो वो आंसर लिखा था वही आंसर होगा। वहां पे क्या लिखा था, क्वेश्चन में वहाँ नियरेस्ट एंड फारेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा ना? क्या हुआ? क्वेश्चन में नियरेस्ट एंड फारेस्ट डिस्टेंस नहीं कहेंगे सर, क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है। सर उसमें जो ए बी वाला टर्म होता है ऊपर में ए बी, अच्छा अच्छा, द नियरेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ड्यूरिंग द मोशन आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अच्छा, तो यहाँ पर ए और बी जो है वो R1 R2 दिया हुआ है, समझ गए बात? यहाँ पर बस वेरिएबल का वो है। सर इसमें केवल प्रॉब्लम यही हो रहा है कि जो रहता है उसमें सर ए डॉट बी रहता है, ए इंटू बी रहता है ऊपर में, और नीचे में A प्लस बी। ए प्लस बी होता है, उसमें नहीं आ रहा है सर, मैच नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हैं आप। यस, ओके, मतलब वहां का आंसर होता है आपका जो आंसर होता है न्यूमेरेटर में होता आपका, है सर ए इंटू बी डिवाइड ए प्लस बी। अच्छा अच्छा, तो L आपका होता है, L होता है M इंटू √2GM R1 R2 बाय R1 प्लस R2, है ना, ये होता है ना। यस सर, और R1 इज इक्वल टू A दे रखा है, और R2 इज इक्वल टू B दे रखा है ना। हाँ, तो आंसर हो जाएगा M इंटू 2GM AB बाय A प्लस B। हाँ, ये हो जाएगा आंसर, लिख रहे हो। यस यू राइट। तो एक्चुअली जो इसमें आंसर क्या सीधे रखा है क्या? इन्होंने ए और बी एक्सेस ऑफ एलिप्स ले रखे हैं, नहीं, आंसर क्या दे रखा है लेकिन इसमें? बोला उन्हें फारेस्ट एंड नियरेस्ट डिस्टेंस है। Well, C is given as such. हाँ, तो C इज गिवन, दैट मींस A और B इन्होंने सेमी मेजर एक्सिस मान के चलना है, समझ गए? लेकिन क्वेश्चन में गलत लिखा है। हाँ, सर ए और बी जब सेम हो जाएगा तो फिर लार्जेस्ट डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच में सर अंतर क्या रहेगा? ठीक है, तो आप आंसर ये कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 says a planet orbits a massive star in highly elliptical orbit. Okay. तो ऑर्बिट जो है आपका इलिप्टिकल है, हाईली। तो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब क्या होता है बताइए, कि मतलब इलिप्स तो है, बट जो इसका इधर वाला डिस्टेंस है ना बहुत ज्यादा है। हाईली इलिप्टिकल का मतलब क्या है, ये होता है आपका R1 होता है ना, और ये आपका R2 होता है। तो हाईली इलिप्टिकल का मतलब ये है, सर हाइपरबोला और पैराबोला। हाँ, हाईली इलिप्टिकल का मतलब होता है कि R1 जो है ना, R2 है काफी बड़ा है R1 से। पैराबोला। हाँ, तो पैराबोला टाइप का है। R2 काफी बड़ा है R1 से, ठीक है। तो अब उसने पूछा है कि इनिशियल क्लोजेस्ट अप्रोच इज R0, ठीक है। तो इनिशियली उसने दे रखा है, इनिशियली क्लोजेस्ट अप्रोच दे रखा है इसने R0, मतलब R1 इज इक्वल टू R0 दे रखा है इनिशियली। अब उसने बोला है कि द एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू टाइडल मोशंस अंटिल द ऑर्बिट इज सर्कुलराइज्ड और फाइनल रेडियस इज RF, अज्यूम दैट एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो फाइनली जो है सर्कुलर ऑर्बिट में आता है, फाइनली आता है सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। और उसकी जो रेडियस है वो है RF, ठीक है। और उसने बोला है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है सर्कुलराइजेशन प्रोसेस में, तो क्या होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, ठीक है। तो L क्या होता है बताइए, L ये होता है ना। यस, तो L इनिशियल है आपका M इंटू
2gm और R1 by R2 को मैं लिख सकता हूँ, और R1 R2 को नीचे डिवाइड करूंगा अगर मैं, तो 1 by R2 plus 1 by R1, दिस इज इक्वल टू L फाइनल। तो L फाइनल होगा, ये सेम होगा 2gm, और सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है, दिस इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2, है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में दोनों सेम रहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/RF प्लस 1/RF, ठीक है। ओके, अब बताइए, इनिशियली R2 इज ग्रेटर देन R1, मतलब ये वाला टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये M 2gm into R1 is equal to M 2gm, और ये हो जाएगा 1/RF प्लस 1/RF 2/RF, तो 2 into RF। तो M और M कैंसिल हो जाएगा आपका, GM और GM तो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ M 2gm, M 2gm कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √R1, और R1 दिया है उसने कितना, R0, तो √R0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √RF बाय, तो यहां से आपका आ जाएगा RF इज इक्वल टू 2R0। तो जो सर्कुलर ऑर्बिट होगी उसकी रेडियस जो होगी वो 2R0 होगी। सर यस, सर ये फाइनली आरएफ जो बात कर रहे हैं, हाँ वो जब इलिप्स था और ऑर्बिट, तो उसको जब सर्कुलर में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर मतलब तब देख रहे हैं ना कि उसकी लीनियर वो एंगुलर मोमेंटम फिर भी कंजर्व है। हाँ हाँ सर तो मतलब उसी ऑर्बिट में ही वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, या फिर ऑर्बिट चेंज करने पर भी वही रहेगा? नहीं, वो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसमें भी चेंज कम वही रहेगा। अच्छा ठीक। सर तो अलग से मेंशन करना जरूरी है सर, अगर नहीं दिया होता तो फिर नहीं मानते ना इसको। हाँ, नहीं दिया होता तो पता नहीं होता ना कि सर्कुलेशन प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, किधर लगा रहा है फोर्स, तो उसमें टॉर्क लग सकता था, है ना। लिख लिया ये। यस सर। सर इसमें जो फोर्स मेंशन करके रखा है उसका मतलब क्या है? फोर्स जो है वो मतलब कोई एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से वो डिसिपेट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अदर प्लेनेट है उनके आसपास, या फिर कोई मून है, या इस तरीके से। या फिर सैटेलाइट के केस में हम क्या करते हैं कि ऑर्बिट चेंज करना आता तो उसको थ्रस्ट देते हैं, थ्रस्ट। यस, बताया था उसने। हाँ, और वो थ्रस्ट जो है वो आपको देना पड़ेगा रेडियल डायरेक्शन में, ताकि टॉर्क ना लगे कुछ। Now let us discuss question number 20. लिख लिया सबने? सर इसमें जो थ्रस्ट जैसा देना होगा, ये मतलब R1 के साइड पे देना होगा ना, क्योंकि अगर उधर देंगे तो और बढ़ ही जाएगा वो। थ्रस्ट देना होगा तो R1 के रीजन में देंगे ना, मतलब जिधर नहीं, वो थ्रस्ट देंगे तो इसमें रेडियस को बढ़ाना है ना, तो जब R1 जब क्लोजेस्ट अप्रोच में आएगा ना, तब वो आउटवर्ड देना पड़ेगा थ्रस्ट। हाँ सर, वही R1 में बोल रहा था। R1 में, you're right.
discuss question number 29. Energy, a particle of mass m in moving, तो mass m है, elliptical orbit है, elliptical orbit है, सेमी मेजर एक्सिस ए पे, ठीक है। और फोर्स दे रखा है आपका, फोर्स दे रखा हुआ है इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसको अगर मैं उससे कंपेयर करूं ग्रेविटी वाले से, तो क्या हो जाएगा, -gmm/r² हो जाएगा, है ना। ओके, तो ग्रेविटी वाले से कंपेयर करूं तो k की वैल्यू जो है वो है -gmm, ठीक है, -gm, ठीक है। ओके, और हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ 1/r, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ 1/r, सबसे पहले बताइए हमें फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। That will be minus integral FTR. Okay, so it will be equal to mk by r. Okay, तो mk by r है, ठीक है। तो वीरियल थ्योरम क्या कहता है, T is equal to average of T is equal to n/2 average of T। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, -1 -1 है n की वैल्यू, एवरेज ऑफ T is equal to minus average of V/2, और हमें निकालना है 1/r का, ठीक है। तो एनर्जी होता है आपका T + V, ठीक है। तो बताइए इलिप्टिकल ऑर्बिट में एनर्जी क्या होता है, -0 -gmm/2 होता है, राइट, ये होता है ना। और यही वैल्यू जो है यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, -gm, तो यही वैल्यू हो जाएगी km/2 है, तो इज इक्वल टू, अगर इसका एवरेज ले लो मैं, एवरेज ऑफ T प्लस एवरेज ऑफ V, तो यहां से आपका हो जाएगा km/2a is equal to average of T is nothing but minus average of V/2 plus average of V, तो आपका जाएगा km/2a is equal to average of V, और एवरेज ऑफ V क्या है हमारा, V है V है यहाँ से mk/r, mk/r, ठीक है। दिस इज इक्वल टू V/2 आएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 और mk/r। तो यहाँ से अगर कंपेयर करूँ मैं, तो km/2a इज इक्वल टू 1/2 mk और 1/r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mk से mk, तो बचेगा 1/r is 1/a। अब उसने पूछा है कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का पूछा है, तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड किस में आता है, काइनेटिक एनर्जी में आता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, km/2 है, ये 30 क्वेश्चन हो जाएगा, km/2 इज इक्वल टू,
अब टी को वहीं लिख देंगे और वी को टी की टर्म्स में लिख देंगे, क्या हो जाएगा, टी इज माइनस वी इज माइनस 2t, टी इज माइनस 2t, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा माइनस टी माइनस के एम बाय 2, और t क्या होता है, t होता है हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एम बाय 2, m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर एम एस आपका हो जाएगा एवरेज ऑफ वी स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस के बाय 8। ध्यान रखना यहाँ पे के जो है निगेटिव होगा, है ना, के इन टर्म्स इंट्रिंसिकली निगेटिव होगा, नहीं तो फिर अट्रैक्टिव पोटेंशियल नहीं रहेगा, तो माइनस के सर यहाँ बाय। पर टाइम एवरेज जो क्वेश्चन में पूछा है सर, इसका मतलब टाइम एवरेज मतलब कि एक जब टाइम पीरियड हो जाता है ना तो उसके बाद में टाइम एवरेज, जो हमने वीरियल थ्योरम किया था उसमें एवरेज लिखा था, वही तो बोला था मैंने, टाइम एवरेज है। वन टाइम पीरियड के लिए। हाँ, मतलब वन टाइम पीरियड की है, लॉन्ग टाइम के लिए बात हुई है ना, क्योंकि लॉन्ग टाइम क्या होगा, अलग अलग टाइम पीरियड में हो जाएगा, तो हर टाइम पीरियड का सेम ही होगा। सर यस, यहाँ पे तो प्लस के होगा ना क्यों, सर? वो तो फिर इमेजिनरी हो जाएगा सर, फिर वेलोसिटी सर। मैंने बोला ना के जो है नेगेटिव है इंट्रिंसिकली यहाँ पे, अच्छा क्योंकि अट्रैक्टिव पोटेंशियल है ना, हाँ तो के इमेजिनरी, के नेगेटिव होगा तो माइनस के पॉजिटिव हो जाएगा, ओके क्योंकि के की वैल्यू क्या है, माइनस जीएम है ना, यस सर। कंपेयर किया था हमने। Okay, now let us look at question number 32। तो क्या है 32, तो सिंपल है, थर्टी टू में तो सिर्फ आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। 33 कैसे हो? 33 देख लेते हैं, ये लिख लिया सबने, यस सर। थर्टी थ्री कहता है द प्रीवियस क्वेश्चन द पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब क्या किया इसने, वर्टिकल सपोज ये है आपका, अब उसने क्या किया, यहां से अल्फा से फेंका है ये, तो अब वो, अब मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी जब ये यहां से रिटर्न करेगा इस तरीके से, तो ये होगी मैक्सिमम हाइट यहाँ पर, है ना, जब पार्टिकल इधर जा रहा होगा, तो मैक्सिमम हाइट ये होगी, ये पूछा है उसने h, और ये हमारे पास r है। तो देखिए सपोज यहां से फेंका तो दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2। अब बताइए मुझे 0.1 और 0.2 में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यस सर। मतलब L1 इज इक्वल टू L2, और उसने स्पीड सपोज v से फेंका है, और v की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन वाली है ना, हाँ, v की वैल्यू दी है इसने अंडर रूट gm बाय r,
और v की वैल्यू उसने दी है, v इज इक्वल टू दिया हुआ है √g/r, गिवन है। तो बताइए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, बताइए। m भी है सर। यहाँ mv/r साइन अल्फा होगा, क्योंकि r और v के बीच में एंगल अल्फा है ना, तो v r क्रॉस p क्या हो जाएगा, r p साइन अल्फा हो जाएगा ना। क्लियर है बात सबको? यस सर, यस सर। तो mvr साइन अल्फा इनिशियली है, फाइनली कितना है, सपोज यहाँ पर आपका v प्राइम हो जाता है आपका, ये इधर v2 रहता है, सपोज v प्राइम v2 रहता है, तो L2 कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, तो क्या हो जाएगा m v2 इंटू, अब डिस्टेंस कितनी है, r प्लस h है, एक इक्वेशन तो आपकी है अभी, एक और इक्वेशन कहां से आएगी बताइए, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन से आएगी, E1 इज इक्वल टू E2, एनर्जी कंजर्वेशन। तो बताइए पॉइंट 1 पर एनर्जी क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -g/m/r, डिस्टेंस इनिशियली r इज इक्वल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m v2 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होगी -g/m/, फाइनल डिस्टेंस है r प्लस h। ओके, तो बताइए v की वैल्यू कितनी है, √gm/r है, तो ये तो हो जाएगा m/2r, तो ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस g/m/r प्लस h, ये इक्वेशन आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो दो इक्वेशन है 1 और 2, और दो वेरिएबल है आपके v2, h, तो ये निकाल लीजिएगा। सर इसको नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह क्यों नहीं मान सकते? नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह कैसे मानेंगे, सर इसका शेप पता नहीं था सर, कि ऐसे बनेगा। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरफ, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में क्या कब होता है, जब वो डिस्टेंस अर्थ के काफी पास हो ना, लेकिन यहाँ पर स्पीड्स काफी ज्यादा है, तो जो mgh वाला फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में लेते हैं, वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में जो है वो डिस्टेंसेस होती है ना, ये काफी कम होती है, कि ये अर्थ है, अर्थ के किसी छोटे से पार्ट पे प्रोजेक्टाइल करते हैं, यहाँ से यहाँ पे, ऐसा कुछ, वेलोसिटीज भी काफी कम होती है, हाइट रेंज सब कम होती है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है, जी भी तो वैरी करता है। हाँ। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, इन दो से आपको v2 और h निकालना है। सर जो परपेंडिकुलर हुआ समझ में नहीं आ रहा है, एक डिस्टेंस पर। मैक्सिमम कब होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तभी तो होगा मैक्सिमम। सर कैसे कर सकते हैं? अरे मान लो कि कुछ और पैरेलल हुआ, कुछ और हुआ डिस्टेंस, ऐसे मान लो हो गया, तो ऐसे मतलब है कि और इधर जाएगा वो, और इधर जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो होगा ना जहाँ पे वो मुड़ेगा, जहां पर मुड़ेगा वही मैक्सिमम होगा ना, तो मुड़ेगा कहाँ पे, जहां पर 90 डिग्री होगा, समझ गए बात? r.0 हो जाएगा वही। हाँ, r.0 हो जाएगा। ओके,
बस 2 मिनट में आते हैं। Okay. So let us discuss now. Question number 40. So according to Kepler's law for planetary motion, where central force as F is proportional to 1 by r square, the revolution is proportional to 3 by 2 the power of same measure. If the force were r square, then Kepler law will. ठीक है. तो देखिए
इस तरह के जो क्वेश्चन हो ना जिसमें कि फोर्स लॉ चेंज किया जाए, फोर्स लॉ को चेंज किया जाए, उसमें केपलर्स लॉ भी चेंज हो जाएगा। है ना? तो केपलर्स लॉ भी चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए आपको मेथड जो है वो करना है, मेथड जो करना है वो करना है अज्यूम, या अज्यूम नहीं, डू द कैलकुलेशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट and find t, which is time period, find time period t as a function of radius, and then generalize it for any orbit. This is the simple method. For example, जब हम कर रहे थे इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब f is proportional to 1 by r square, तो यहां पर जो हमारा t आ रहा था सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर में t आएगा, वो आएगा t is proportional to r to the power 3 by 2, ठीक है? इसको जनरलाइज कर दिया, t is proportional to a to the power 3 by 2, ठीक है? सिमिलरली यहां पर जो है f दे रखा है, f is proportional to r square, ठीक है? f is proportional to r square, ओके। तो यहां पर आपका आ जाएगा और ये अट्रैक्टिव होगा, तो f जो होगा आपका मतलब माइनस के आर स्क्वायर, कुछ इस तरह का होगा, ठीक है? अब सर्कुलर ऑर्बिट मान के चलो, सर्कुलर ऑर्बिट, तो यहाँ पर जो है आपका इस तरीके से मूव कर रही है, रेडियस इसकी सपोज r है और ये सपोज v से मूव कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका सर्कुलर ऑर्बिट में fr इज इक्वल टू mir हो जाएगा। सर्कुलर ऑर्बिट में fr कितना हो जाएगा, माइनस के और r है आपका रेडियस r स्क्वायर इज इक्वल टू m इनटू, सर्कुलर ऑर्बिट में एक्सेलरेशन कितना होता है, माइनस में 10 square करूंगा। माइनस v स्क्वायर बाई r। ठीक है? तो यहां से आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू k बाय m r क्यूब अंडर रूट, v इज इक्वल टू k बाय m r क्यूब अंडर रूट, ठीक है? अब टाइम पीरियड t निकालना है, t कितना होगा, 2 पाई r डिस्टेंस है और उसको v स्पीड से कवर कर रहे हैं, 2 पाई r डिवाइड बाय v डिस्टेंस से कवर कर रहे हैं, तो अंडर रूट k बाय m r क्यूब, ठीक है? तो यहाँ से आ जाएगा t इज प्रोपोर्शनल टू, ऊपर है r है r टू द पावर 1, नीचे r टू द पावर 3 बाय 2, तो r टू द पावर माइनस 1 बाय, ठीक है? तो अब इसको जनरलाइज कर दो, t is proportional to a to the power minus 1, आंसर आपका आ जाएगा सी। सर जो डीए बाई डी होता है जे एल बाई टू एम, वो सर कंजर्व नहीं रहेगा इसमें, क्या डी बाई डी टी, एल बाई टू एम होता है ना, हाँ वो कंजर्व रहेगा, सही कह रहे हो। तो उतना ही होगा इस सर्कुलर केस में भी। हाँ हाँ उतना ही होगा। अब 41 में पूछा है कि अगर r टू द पावर n है तो जनरल केस के लिए निकाल सकते हो आप लोग,
जनरल केस के लिए निकाल सकते हो आप लोग, अगर f की पावर f इज इक्वल टू r टू द पावर n दिया हुआ है यहाँ पे, तो जनरल केस के लिए निकाल सकते हो ना। Yes, sir. यहाँ पर सिर्फ r टू द पावर n हो जाएगा, तो यहाँ पर r टू द पावर n हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर यहाँ पर r टू द पावर n होता, तो इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं n, तो n होता अगर यहाँ पे, तो यहाँ पर भी n हो जाएगा, और कहाँ पे n हो जाएगा, तो ये r टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 की जगह 2n प्लस 1 हो जाएगा ना, 2n प्लस 1, और टाइम पीरियड होगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये r टू द पावर, जनरल केस के लिए हो जाएगा t इज प्रोपोर्शनल टू r बाय r टू द पावर 2n प्लस 1 बाय 2। t इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका r टू द पावर, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा r टू द पावर माइनस n, और ये हो जाएगा -1/2। t इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r टू द पावर माइनस n प्लस 1/2, माइनस n प्लस 1/2, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। मतलब पहले सर्कुलर मोशन के लिए हम किसी भी फोर्स फील्ड का करेंगे और उसके बाद उसको जनरलाइज। यस यस, ए ही लेते हैं ना हम लोग मेजर एक्सेस। हाँ ए मेजर एक्सेस। तो ये देखिए एक बार 2n प्लस 1 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2n प्लस 1 आया क्या, n 2n प्लस 1 नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ n प्लस 1 आएगा, सिर्फ n प्लस 1 सिर्फ n प्लस 1 आएगा, सिर्फ n माइनस n/2 माइनस n/2, ये आएगा ना। ये रहा आंसर। सर इसमें सर्कुलर ऑर्बिट क्यों सर एज्यूम किए हैं? मतलब जनरल के लिए भी वही होगा, इसीलिए हमें उसका बस लॉ निकालना है ना, तो लॉ तो हर ऑर्बिट में सेम ही रहेगा, तो इसीलिए सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमें खाली प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है। हाँ प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, और जो लॉ होता है ना वो हर एक ऑर्बिट के लिए सेम होगा, टाइम पीरियड वाला लॉ, दैट्स व्हाई। ये 1 मिनट, ये आंसर सबका ये आ रहा है क्या, इसमें आंसर मैच नहीं हो रहा है? हाँ सर यही आ रहा है 1/2 माइनस n/2। तो आंसर तो कहीं दिया नहीं है ना ये, अच्छा ये है ना, सी दिया हुआ है, हाँ सी है, ठीक है, ओके। सर यस, सर जब केपलर लॉ में हम जब dA/dt इक्वल लिखते हैं पाई ए बी बाई टी, जस्ट 1 मिनट, हाँ क्या बोल रहे हैं? जब हम लिखते हैं वहां पर dA/dt इक्वल पाई ए बी बाई टी, हाँ तो सर जब इस केस में लिखेंगे तो वही लिखेंगे, जब dA/dt कंजर्व रहेगा तो बात तो वही हो जाएगी, चेंज होगा नहीं कुछ, चाहे फोर्स कोई कुछ भी हो। dA/dt क्या लिखते थे हम, पाई ए बी बाई टी, जैसे वो सर इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए जो एरिया निकालते थे पाई ए बी बाई टी करके, हाँ हाँ, तो सर जब इस केस में निकालेंगे, यदि dA/dt कंजर्व रहेगा, इस केस में भी J/2 L/2m होगा, तो सर इसमें या उसमें अंतर कुछ रह नहीं जाएगा, चाहे फोर्स कुछ भी हो। जस्ट 1 मिनट, dA/dt आप रेडियल उसकी एरियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? यस सर। हाँ, तो dA/dt इज कंजर्व, बिल्कुल सही है। तो dA/dt कंजर्व होगा क्योंकि सेंट्रल फोर्स, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं हाँ, बोल रहे हैं जैसे केपलर लॉ में वहां पर लिखते थे L/2m, L/2m, हाँ और जो एक प्रूफ आता है सर वो पाई ए बी बाई टी से, नहीं जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हम निकालते थे वो पाई ए बी बाई टी से निकालते थे, इक्वल J L/2m।
हाँ पाई AB by 2 से निकाल दो, ठीक है, हाँ सही कहा आपने। फिर सर सब जब इस दूसरे अनदर फोर्स के लिए देखते हैं हाँ केपलर से हट के, तो हाँ सर उसमें जब डीए बाई डी टी कंजर्व रहेगा तो सर हाँ। कैसे होगा? फिर तो बात वहीं आ जाएगी। नहीं तो पाई AB में वहां पे A और B का रिलेशन अलग अलग होगा ना फिर। कैसे सर? यदि हम ए बी को सेमी मेजर एक्सिस माइनर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस मानते हैं तो। एक मिनट, हाँ आप क्या बोल रहे हैं कि DA by DT जो होता है ये एरियल वेलोसिटी है, ठीक है, हाँ तो DA by DT जो होता है क्या होता है? टोटल एरिया बाय टाइम पीरियड, मतलब पाई ए बी बाई टी। DA by DT इज सबसे पहली बात तो हाफ आर स्क्वायर थीटा का होता है ये, और दिस इज इक्वल टू L/2m। L/2m, ठीक है, हाँ और ये कांस्टेंट है। यदि हम दूसरे फोर्स के लिए भी देखें, तो दूसरे फोर्स के लिए देख रहे हैं आप, ठीक है, फॉर अनदर फोर्स, हाँ तो DA by DT कांस्टेंट होगा L/2m, हाँ सही कह रहे हैं। फिर यदि हम फोर्स चेंज करें आ, सर कैसे कंजर्व रहेगा? फिर कंजर्व रहेगा तो उसका टाइम पीरियड तो फिर वहीं आ जाएगा। नहीं तो टाइम पीरियड तो क्या होता है? टाइम पीरियड होता है और टाइम पीरियड होता है एरिया बाय एरियल वेलोसिटी। यस सर। एरिया है, एरिया क्या बोलते हैं? पाई ए बी। हाँ एरिया पाई AB बाय एरियल वेलोसिटी L/2m, हाँ तो आपका पाई 2m इंटू AB बाय L, हाँ तो अब क्या बोल रहे हैं आप? तो आप ये बोल रहे हैं कि ये सेम कहां से होगा? अब जो L होगा ना उसका A पे डिपेंडेंस अलग होगा, B का A पे डिपेंडेंस अलग होगा, तो ओवरऑल A की पावर अलग हो जाएगी। फोर्स लॉ में ये वैलिड तो है, बिल्कुल सही बात है, AB बाय L, बट L का A के ऊपर डिपेंडेंस अब अलग हो जाएगा। समझ गए बात? जैसे यहां पर L हमने लिखा था, L होता है m इंटू अंडर रूट GM और B स्क्वायर बाय A, आपको याद है लिखा था हमने ये? यस सर। तो फोर्स लॉ जब इनवर्स है तब ये है L, जब फोर्स लॉ कुछ और होगा तो L की वैल्यू चेंज होगी, A और B पे डिपेंडेंसी, तो ये ऑर्डर अलग हो जाएगा। सर ऑर्बिट भी तो बदल जाएगा ना सर उसका, या फिर साइज बदल जाएगा, फिर ऑर्बिट का शेप ही बदल जाएगा। हाँ ऑर्बिट बदल भी जाएगा और इलिप्टिकल भी रहे ऑर्बिट, और A भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन L का A के ऊपर डिपेंडेंसी चेंज हो जाएगा, तो L का A के ऊपर डिपेंडेंसी चेंज हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा ना, तो A का मैग्नेट A का जो पावर है वो चेंज हो जाएगा। समझ के बात क्या बोल रहा हूं? हेलो, हाँ सर। ये क्लियर है कि नहीं? अभी तो नहीं है, लेकिन सर कुछ सोचेंगे तो अरे अभी तो तो ये देखिए ना, L इज इक्वल टू ये है, तो L जो है L भी तो A पे डिपेंड कर रहा है ना, सर यहाँ पर कर रहा है। तो अब कोई और ऑर्डर है तो उसमें लॉ में ऐसा भी हो सकता है कि L मान लो अज्यूम होगा L इज समथिंग B की पावर 3 बाय A की पावर 5, ऐसा कुछ हो सकता है, तब यहाँ पे A की पावर चेंज होगा ना ओवरऑल। समझ गए बात? ये जो है ये केवल किसके लिए, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर के लिए, कुछ और फोर्स है उसके लिए, सपोज ये है आपका, तो उसमें A की पावर चेंज होगी ना ओवरऑल। यस सर। तो ये मैं कह रहा हूँ, आपका ये लॉजिक ठीक है कि ये अल्टीमेटली AB बाय L ही होगा यहाँ पे, बट L का A के ऊपर डिपेंडेंसी चेंज होगा तो A की पावर चेंज होगी। क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है। So now let's do 42 तो हमने कर लिया।
ये 47 तो हमने क्लास में किया था। 47 में क्या पूछ रहा है? प्लेनेट ऑफ मास एम मूव्स अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो R1 R2 दिया हुआ है, R1 R2 मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम, तो ये है मैक्सिमम और मिन। तो उसने टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 3/2, है ना। और a क्या होता है? a होता है R1 प्लस R2/2। टाइम पीरियड हो जाएगा R1 प्लस R2/2 टू द पावर 3/2। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ये तो ये वाली बात। Okay. कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग। एक बार देख लेते हैं। ये तो सी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है A planet revolves around the sun as shown in figure। ठीक है। This is sun। और उसने दे रखा है ये वाली डिस्टेंस 2r0। ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस इसने r0 दे रखा है b a। ओके। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? और यहाँ पर जो स्पीड दे रखी है वो v0 दे रखी है, और यहाँ पर स्पीड दे रखी है 4v0। एंगल क्या होगा? ठीक है। तो प्लेनेटरी मोशन है तो मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब LP इज इक्वल टू LA। तो LB क्या हुआ? m इंटू r क्रॉस v। तो r क्रॉस v को बोल देते हैं सपोज r, तो r है 4v0 और साइन अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा m इंटू 2r0 इंटू v0। यहाँ से आपका हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू m से m हो जाएगा v0 से v0, r0 से r0। तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू 1/2। अल्फा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है इस तरीके से v वेक्टर और r वेक्टर है, उनके बीच का ये एंगल थीटा, ये अल्फा है, ये अल्फा है 30 डिग्री। ओके। कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और कुछ आपको मैं उससे भेज दूंगा पीडीएफ। ठीक है। अच्छा, और बाकी हमारा अभी और कौन सा असाइनमेंट रह रहा है? 9.1 5.1 रह रहा है और 9.1 रह रहा है। ठीक। तो 9.1 कर लिया आप लोगों ने? 9.1 के बहुत कम क्वेश्चन बन पा रहे हैं। यस सर।
सर ड्रॉप हो गया लगता है। यार एंड कर दो, मीटिंग है ना। सर आ गए फिर तो यही हो जाएगा, एंड कर दोगे तो सर आ नहीं पाएंगे।